भारत का 78वां स्वाधीनता दिवस यानी हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव का अवसर। यहां उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास साफ पढ़ा जा सकता है। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिछले वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी परिणति को विकसित भारत के संकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आज भारत एक नई करवट ले रहा है। देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए हैं, अनुपम हैं, अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है और इसीलिए समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में बदलाव महसूस कर रहा है। As we are celebrating India's extraordinary journey from a newly liberated nation to a global powerhouse, we must highlight our areas of development. Our economic growth has been remarkable, evolving from a focus on self-sufficiency to becoming one of the world's largest economies. In technology and innovation, India stands out with its thriving IT sector and groundbreaking advancements. Our achievements in space exploration, including the Mars Orbiter mission and Chandrayaan missions, underscore our technological prowess. Even our rich cultural heritage and contributions to arts and literature are celebrated globally. As we reflect on these accomplishments, we honor our past and look forward to a future of continued growth and global respect. As we gather at the iconic Red Fort and as millions across the country tune in to witness this momentous occasion, we celebrate the rich tapestry that defines our nation. This moment also makes us ponder that independence was not just the end of colonial rule, but the beginning of a journey towards self-determination and growth. Today, India's strides in education and healthcare stand as testaments to the fruits of freedom. In education, the digitization revolution has transformed learning, making it more inclusive and accessible. भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लगातार उच्च मानकों को स्थापित करके उन्हें पाने की दिशा में प्रयासरत है। भारत के शिक्षण संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार कई बीमारियों के नियंत्रण से लेकर उनके उन्मूलन तक की दिशा में आगे बढ़े हैं। हम विशाल देश हैं, आकार की दृष्टि से और जनसंख्या के पैमाने से भी हमारी चुनौतियां अलग हैं और लक्ष्यों को पाने की हमारी कोशिशें भी अनूठी हैं। हमारी ये तमाम कोशिशें अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। किसी भी देश की प्रगति की सही पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति से। साथ ही आधारभूत संरचना में निवेश और वहां पर आशातीत विकास भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उभरते भारत की प्रगति के साक्षी रहे देशवासियों को इस बात का बखूबी एहसास है कि यहां तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर करने के संकल्प की ही ये जीत है कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के नए आयाम लिख रहा है और आधारभूत संरचना में निवेश को भी समुचित प्रोत्साहन मिल रहा है। As a cross section of the audience would clearly show, India is a young country with an old civilization. Today, with the largest aggregate of young people in the world, India is seen as a vibrant democracy with a robust economy, well positioned to reap a demographic dividend. Young India is aspirational, aware and alive to its dreams and ambitions. And today, as we celebrate our freedom and independence as a nation, we need to foreground the importance of interdependence as a people.
an excited crowd awaiting for the festivities of celebration to begin with the Prime Minister's arrival. Prosperity, growth and advancement in silos, we all know, is self-limiting, and we are all deeply interlinked socially, physically and economically. Progress and development have to reflect in all sections and strata to make it sustainable for India, ensuring that it remains one of the fastest growing economies of the world. Celebrations would really never be complete without the participation of these young school children that we have present here across the ramparts. The Inter-Services and Delhi Police Guard of Honor assembled. The crowd visibly anticipative. The sun seems to have taken a back seat and the cloud cover providing protection in this heat. It's a humid day, and of course there's a slight gentle breeze which is making the humidity bearable. This is the VIP enclosure with the dignitaries and of course special enclosure for the general public and many special invitees. Nearly 25,000 people would be here, and this is a shot of the school children. सावन के महीने की बहुत ही शानदार और खूबसूरत सुबह, और हम मना रहे हैं हमारा स्वाधीनता दिवस। सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने के लिए नारी शक्ति और युवा शक्ति की भागीदारी सबसे जरूरी है, और युवा शक्ति को दर्शाते हुए यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स 2000 की संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र और उन्हीं के साथ लगभग 500 एनएसएस के वॉलंटियर्स, जिन्होंने माय भारत की आकृति यहां बनाई है लाल किले की प्राचीर के सामने, जिसे ज्ञान पथ कहा जाता है। हम जानते हैं नारी शक्ति मजबूत समाज का आधार है और युवा शक्ति बदलाव की वाहक है, साथ ही परिवर्तन की लाभार्थी भी। ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर यात्रा है। ये परिवर्तन का ऐसा संकल्प है जिससे जीवन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। Definitely witnessing remarkable progress with women breaking barriers and setting new benchmarks in every field. And this year, among the distinguished guests gracing the celebration are some extraordinary individuals, like Lakhpati Didis, who are a beacon of rural entrepreneurship and employment. Their journey from humble beginnings to becoming successful businesswomen highlights the transformative impact of economic empowerment. We also have drone Didis seated here, who are renowned for their innovative use of भारत योजना के लाभार्थी शामिल हैं, पीएमसी योजना के एक छात्र शामिल हैं और सीमा सड़क संगठन, जो कि सीमाओं पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके कर्मचारी भी शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 2000 प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहां उपस्थित होकर देश के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह है विकसित भारत 2047 के संकल्प को परिभाषित और परिलक्षित करता हुआ युवा शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर 2000 एनसीसी कैडेट्स, जो कि देश के अलग अलग स्कूलों से यहां पर आए हैं, उसके अलावा एनएसएस के 500 स्वयंसेवक हैं, आज के इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को अनोखी गरिमा प्रदान कर रहे हैं। The clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started, and as the weather changes, well, so is India. India is changing, and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges, and here at
Rajghat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived. दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। With centuries of history embedded in its walls, the Red Fort is a true example of architectural brilliance. Everybody now awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. When the national anthem is being played during the flag hoisting, a 21-gun salute will also be given. The 105mm light field gun will be giving the salute, and the 8711 field battery will be presenting that. Major Sabnish Kaushik will be the commanding officer of that. These are 14 buglers from the three services. They mark time and of course shortly will herald the arrival of the Prime Minister here at the venue, forming the logo of My Bharat, NCC cadets. The NCC, a pillar of discipline and national pride. Cadets undergo rigorous training and inculcate the values of leadership, integrity and responsibility. And of course also the NSS volunteers, known for their selfless service to society, has long been a force for social change. My Bharat are specially positioned cameras bringing you these beautiful visuals. In fact, the humidity in the air providing for perfect visuals. माय भारत जो अब विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है, गण्यमान्य व्यक्तियों की दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर और हल्की सी बूंदाबांदी के बाद मौसम और भी खुशनुमा होता हुआ ऐतिहासिक लाल किला
जिसकी ये प्राचीर और वहां मौजूद हैं गण्यमान्य व्यक्ति। प्रतीक्षा है, कुछ ही देर में आगमन होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री का। ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी नींव 1638 में रखी गई और 1648 में तैयार हुआ। इसी लाल किले ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को देखा। बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। उसके बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में लाल किले का स्थान हमेशा आजादी की लड़ाई के केंद्र में रहा। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। लाल किले पर तिरंगा फहराने का जज्बा हर वीर, हर क्रांतिकारी के, हर देशभक्त के मन में था। यही लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया गया और बिगुल की आवाज जो उद्घोष है इस बात का कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey giving the command as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से, जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे। देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। उत्तर सेना पुलिस समारगढ़ आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the Guard is ready for inspection
and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here. Knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival, the Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए इसमें एक काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां यह प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले यशस्वी खिलाड़ी, जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है।
आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है। बारिश कभी थम जाती है फिर होने लगती है और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म समभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर। वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म समभाव की स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Absolutely. And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today is to unite the largest democracy in the world, and today with much over 1 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green colors which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression, and yes, the weather is one of them. Our stars, our players, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. अंतर सेना पुलिस कमांड राष्ट्र
Commandant! Bugle! Test! Panzer Sena Police Commandant! Ball चलेगा! Ball! Ball! Panzer Sena Police Commandant! राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 9 एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस, उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off, away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने, नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। माता की, भारत माता की।